Hi Deep, welcome once again on Your Free Education. Yeah, thank you, sir. So I had interaction with you when you got selected in BARC, and now you Sir. are working there. I think this couple of months you have already worked there in BARC now. How No, is everything going? not couple of months. It has been uh, about 6.5 months. I've been there. Okay. So तो how is अभी भी everything going? ट्रेनिंग हो रहा है अभी तक वो चल रहा है अभी तक That is in ट्रेनिंग. Trombe only? हाँ हाँ सर. ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे के पास ही है. Okay, great. That is called Anushakti Nagar, right? हाँ, अनुशक्ति नगर बोलते हैं उसको. Great. Okay, so Deep Jyoti, today my this interaction is for little different purpose. As you know, there is a exam. BARC conducts exam, separate exam also, Yes, which sir. is scheduled to be in September. They take Yes, sir. gate also and then the separate Yes, sir. exam also. So now I want to discuss with you related to the strategy. Now I think 1 month is left, and what strategy students should follow last 1 month, because you have written this exam and you have Yes, sir. cleared this exam and now Yes, you're sir. a BRC scientist. So I want to ask you very precise, very straight, very short strategy. What students should Yes, sir. follow at this moment? Yes, sir. Let me tell you first that what is the type of exam. So there will be 100 objective questions. Each question will carry 3 marks, and there will be a penalty of -1 for each negative for each wrong answer. So 100 questions is a lot of questions. So that because of 100 questions, they get a scope of asking from each and every subject. Okay. हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा पूछ लेंगे ऐसा करके. For example, say material science. For GATE, we don't study material science that much, but they can ask for a weightage of 6 or 9 marks, because if a single question carries 3 marks, whereas in GATE we have 1 or 2 marks questions. Now the good thing is that there are 4 options. There are no NAT, no numerical answer type questions. Okay. So if you are confident about your calculation and your answer matches with the option, then according to me, as I have seen while giving the exam, suppose you are solving a question and your answer has matched with one of the options. So you may say that you have solved it correctly. So that is the thing. So 100 questions, yes. Same thing, I'll say that for example, let us take a subject, say industrial. We don't study industrial engineering in that much depth, even though it will help. ऊपर ऊपर से भी पढ़ेंगे, हर एक फॉर्मूले को आप देखेंगे, याद रखेंगे, तो आप आंसर कर सकते हैं. सो 100 क्वेश्चंस है ना, तो मैं ऐसा ही बोलूंगा किसी भी कैंडिडेट जो ये एग्जाम लिख रहे हैं, मैं बोलूंगा कि 100 क्वेश्चंस है, आप एक बार तो सारे क्वेश्चंस देख ले. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले पहले में मान लीजिए कि आपको पहले पहले में जो क्वेश्चंस है वो आपको टफ लग रहे हैं. Okay. सो बाद में जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, सपोज यू आर in the 2nd or 10th question, okay, which is seeming to you very tough. There are 100 questions, skip that. Skip that, because you don't have that much of amount of time, because you have been allotted only 120 minutes. 120 minutes, right? And if for mechanical engineering, I'm saying in perspective of mechanical engineering, if a student say he answers 55 plus questions correctly, 55 plus questions correctly without any mistake, then there is a chance of more than 90% of him getting shortlisted for the interview, of him or she getting shortlisted for the interview. That is the thing. For example, मैं तो जानता हूँ, मैं ऐसा ही 60 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था मैंने, और मेरे को ऐसा श्योरिटी था कि एक भी क्वेश्चंस मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि वही जो भी मैं कर रहा था ऑप्शंस के साथ मैच हो रहे थे. और मेरे को भी कट ऑफ तो था लास्ट ईयर 170 के अराउंड, मुझे भी अबव 200 मिले मेरे को, तो कट ऑफ से 32 मार्क्स ऐसा ज्यादा मिले. तो बहुत ही अच्छा गया था मेरा एग्जाम. मैं एक्चुअली एग्जाम देने के बाद कुछ कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, मैं श्योर था कि रिटन तो क्लियर हो जाएगा अभी. वही है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि जो बिग सब्जेक्ट है, जैसे सॉम हो गया,
मशीन डिजाइन भी ऊपर ऊपर से देख ले। कोई अगर मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा कि अगर गेट का प्रिपरेशन किसी ने करके रखा है तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। अच्छा। गेट का प्रिपरेशन या ईएससी का प्रिपरेशन जो करके रखा है, जिसने करके रखा है उसको तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, तुम सारे फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लो, बहुत ही क्विक रिवीजन करो। और रिवाइज करने का सर सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे दो, कोई टेस्ट सीरीज कर लो, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि वेयर आई एम लैकिंग। यस, दैट इज द थिंग। दैट इज ट्रू। सो फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन से मैं देखा कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वो लोग क्योंकि 100 क्वेश्चंस है ना, उनके पास बहुत स्कोप होता है क्वेश्चन करने का। और हमारा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे वास्ट है। सब इंजीनियरिंग में इसका सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, तो मार्क्स भी बहुत ही स्कोर होते हैं। इस बार भी कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ज्यादा नोटिफिकेशंस नहीं आए जॉब के लिए, पीएसयूज के लिए, या इसरो का भी 2020 का भी चल रहा है, डीआरडीओ का भी इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट शायद नहीं निकला होगा उसका। तो मार्क एक बड़ा अपॉर्चुनिटी तो देता है, क्योंकि ये बार्क एक्चुअली तो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पर आपका पोस्टिंग एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। बार्क और बीआरसी सिर्फ इसका एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। ऐसा बहुत सारे यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया, तो कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ओके दीप, आई विल आस्क यू वेरी स्ट्रेट नाउ सर्टेन थिंग्स। आर देयर एनी फेवरेट सब्जेक्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हिच स्टूडेंट शुड फोकस मोर? सर ऐसा तो देखिए, कोई अगर सॉम भी पढ़ के जाएगा ना, तो उससे भी मतलब टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 2 मिनट में तो सॉल्व नहीं होता, या 3 मिनट में सॉल्व नहीं होता, बहुत बड़ा क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा जो गेट में जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं उसी हिसाब से प्रिपेयर करके जाए, अच्छा होगा। ओके, जैसे कि सॉम हो गया, टॉम हो गया, फिर या जिसमें थर्मोडायनामिक्स हो गया, जिसमें प्रिपरेशन अच्छा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर ले। हाँ, जिसमें प्रिपरेशन अच्छा है करके जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही। और इंजीनियरिंग मैथ्स से भी सर क्वेश्चन आता है। कई स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथ्स करके नहीं जाते, पर 3 क्वेश्चंस या 2 to 3 क्वेश्चंस आ जाता है। सपोज 3 क्वेश्चंस आ गए, तो 3 क्रॉस 3 9 मार्क्स उसको मिल जाएगा, अगर वो उसको सही कर पाए तो दैट इज द थिंग। अच्छा दीप, दूसरा मेरा क्वेश्चन कि आपने बोला 60 मैंने अटेम्प्ट किया और मेरा स्कोर अच्छा आ गया और कट ऑफ से 20-25 ज्यादा आया था, तो 100 क्वेश्चन, तो इज इट गुड स्ट्रेटजी कि 100 अटेम्प्ट ना किए जाएं? इनफैक्ट ऐसा टारगेट रखा जाए कि 100 सर अटेम्प्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो रहा है कि सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, गलत निकल गया, ठीक है, तो सॉल्व करने में तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस भी आ जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सर लुक्रेटिव है, जैसे कि आपको मतलब देख के आपको ग्रिड आ जाएगा कि ये सॉल्व करूं मैं, पर करने के टाइम पे ऐसा लग जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, ये अगर नहीं अटेम्प्ट कर, तो अगर फंस गए ना उसको वही छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। सही है। अच्छा दीप, दीप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी यू कैन आंसर दैट। ये कैसे पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करना? ये कैसे पता लगेगा? मैंने देखना स्टार्ट किया, आपने बोला कि शुरू में 5 मिनट उसको देख लो, आपने बोला कि शुरू में सारा पेपर नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि शुरू में 5 मिनट में आप 100 क्वेश्चन देख लो। मैं बोल रहा हूँ यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, you start solving from question number 1, and whenever you get stuck in one question, leave that and then you get to question number 2. अच्छा, in that आप जैसे कि ऐसे करते करते जाओगे ना, तो शुरू में क्या होगा, आपके 40 से 45 क्वेश्चंस ही होंगे, या 50 क्वेश्चंस, कोई अच्छा स्टूडेंट का 50 क्वेश्चंस हो जाएगा, तो 50 क्वेश्चंस में वो उसने कॉन्फिडेंटली आंसर कर दिया। ओके, और उसको ऐसा ही, अगर उसका स्पीड अच्छा है तो हाफ एन आवर उसको मिल जाएगा, 1.5 घंटे में वो 50 क्वेश्चन आंसर करने के बाद उसको हाफ एन आवर मिल जाएगा, जिसमें अगर उसने 5 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ निकाले या 6-7 क्वेश्चन ढूंढ निकाले, 55 प्लस अटेम्प्ट कर सके, हो जाएगा उसका। ऐसा तो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो कई बार ये होता है ना कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन छूट जाता है। हाँ सर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि मे बी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, मैंने फर्स्ट से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, और मैं 60-70 तक ही कर पाया, और अगले 30 क्वेश्चन बहुत आसान थे। इसीलिए तो सर मतलब फंसना नहीं है बड़े क्वेश्चंस में। अगर लग रहा है कि टाइम ज्यादा ले रहा है ये, तो छोड़ दे। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है टाइम लग रहा है पर मेरा स्कोर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो कर ले। मतलब मैक्सिमम टाइम कितना दे सकते हैं एक क्वेश्चन पे? सर ऐसा तो 120 क्वेश्चंस है, सो 100 क्वेश्चन है या 120 मिनट? सॉरी, 100 क्वेश्चंस है, 120 मिनट्स है। हाँ, पर
जिसका स्पीड बहुत है वो तो 60 to 65 इतना तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अच्छा अगर कोई 60 क्वेश्चंस करेगा तो 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट से ज्यादा मेरे हिसाब से स्पेंड नहीं करना चाहिए क्वेश्चन में। अच्छा, एक और क्वेश्चन। सर एक्चुअली 3 मिनट भी स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो तो देख के आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चंस का वेटेज तो सेम ही है। और हमारे इंजीनियरिंग में एक चीज अच्छा क्या है, मल्टीपल सेशंस में होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है ना, तो उसको मतलब नॉर्मलाइज होता है, बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है। सही है। मैंने सुना है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं काफी नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि मैंने अटेम्प्ट जितना किया था ना, उससे मेरा 30 मार्क्स ज्यादा आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही है। ओके। नॉर्मलाइजेशन। तो मतलब हाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जहाँ फंस गए उसको छोड़ दो, मैक्सिमम 2 हाँ, मिनट जिधर फंस गए ना चलो। उसके बारे में सोचना भी नहीं उसके बारे में, छोड़ अच्छा, दो। एक्यूरेसी और एक्यूरेसी एक्यूरेसी तो सर चाहिए, क्योंकि आप जो एक क्वेश्चन आपका गलत होगा ना जिसमें आप फंस जाओगे, वो दो कारण से हो सकता है। या तो सर आपका कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, या फिर आपका अप्रोच ही गलत है। अगर अप्रोच गलत है तो ठीक है, उसको छोड़ दो। पर अगर कैलकुलेशंस गलत है तो आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपने मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, ऐसा हो जाएगा। कि ऐसा करना नहीं चाहिए, कैलकुलेशंस में तो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। और मैं सर स्टूडेंट को ऐसा बोलूंगा कि हम बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो जैसे कि पीएससी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता, या ईएससी में स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर्स नहीं मिलते, तो सर मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हैंड कैलकुलेशन भी अगर आ सके ना, क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेटली भी किसी आपको आपको ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं अप्रोक्सीमेटली ढूंढूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अप्रोक्सीमेटली ढूंढूंगा। अगर वो प्रैक्टिस भी हो पाया तो मतलब बहुत टाइम आपका सेव होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। सही। और दीप, एनी अदर टिप्स यू कैन गिव? यस सर, और एक चीज है कि जैसे कि गेट के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर करके जाते हैं। मैं बोलूंगा सर ईएससी के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। ईएससी के क्वेश्चंस अगर कोई करके जाता है तो उसको बहुत फायदे होंगे। जैसे कि सर प्रोडक्शन में तो ईएससी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है प्रोडक्शन में, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और ईएससी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट ईएससी के जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े से क्वेश्चन जैसे कि सॉल्व करना पड़ता है हैंड कैलकुलेशन से, और लेंथी भी होते हैं, उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छा होता है। चलो ग्रेट दीप, आई थिंक ये जो आपने पॉइंट्स दिए हैं दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम। सो मैं भी यही सोच रहा था कि एग्जाम तो बहुत ही पास है, तो जितना जल्दी हो सके इंटरेक्शन सही है। चलो ग्रेट, थैंक्स अ लॉट दीप, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स। और सर जिनको मालूम नहीं है बार के बारे में बताऊंगा, इधर मतलब ट्रेनिंग स्कूल बहुत ही अच्छा है। अभी तो खैर कोविड के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, पर फिर भी मतलब इधर का लाइफ बहुत ही अच्छा है। जैसे कि सर आईएएस ऑफिसर का बैच बनता है, एक एक बैच निकलते हैं ट्रेनिंग करके लबासना से। इधर भी अनुशक्ति नगर से सर ऐसा ही होता है, हमारा एक बैच होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर 64th बैच ऑफ ट्रेनिंग स्कूल। ओके, सो इधर से मतलब वेरियस एंड आई नो रीजन्स दिस पे, इज लोकेशंस पे पोस्टिंग होते हैं। ये ओके, बहुत ही एंड दिस इज अच्छा ऑन लगता है। अरेबियन सी, मेरे ख्याल से बहुत साथ साथ चलता है। हाँ सर, मतलब समंदर के पास ही है ये। ओके, वो अच्छा ही है, ये कॉलोनी तो बहुत ही अच्छी है। हम हमारा खैर so हमारा जो, presently you are staying inside the colony, right? हाँ या अनुशक्ति नगर इन अनुशक्ति हॉस्टल, नगर। वी हैव बीन प्रोवाइडेड हॉस्टल, तो उधर हम रह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। चलो ग्रेट टॉकिंग टू यू वंस ओके अगेन सर, देवज्योति, थैंक यू। ओके सर।